السلام علیکم دوستو، میں محمد نوشاد عالم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہم لوگ لگاتار سیریز کے ساتھ اردو قواعد کو پڑھ رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم کچھ اردو قواعد سے متعلق معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہار ملازم انتخاب کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ معاون اردو مترجم کا امتحان 2 مرحلے میں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں پہلے مرحلے کے امتحان کی تیاری پر زور دینا چاہیے۔ پہلے مرحلے کے امتحان کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے نصاب کو جانیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک نظر پہلے مرحلہ کے اگزام کے نصاب پر ڈالتے ہیں۔ دوستو، بہار ملازم انتخاب کمیشن نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ پہلے مرحلے کے امتحان کا سوال وستو نشٹھ یعنی معروضی، جسے انگلش میں آبجیکٹو کہا جاتا ہے، اس طرح کے کوشچن ہوں گے۔ اس ابتدائی امتحان میں جس موضوع سے سوالات پوچھے جائیں گے اس کی تفصیل نیچے یہاں دیا گیا ہے۔ تو یہ ابتدائی امتحان 100 انک کا ہوگا اور 90 منٹ اس کے لیے آپ کے پاس موجود ہوگا، اور اس میں آپ سے اردو ویاکرن، خصوصیت کے ساتھ واحد، جمع، تذکیر، تانیث، ازداد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اردو سے ہندی میں انواد، ہندی سے اردو میں انواد، اسی طرح اردو شبداولی سے ہندی شبداولی نرمان اور ہندی شبداولی سے اردو شبداولی نرمان اور سمان گیان، یہ کل ملا کر 100 انک کے ہوں گے۔ اگر اس پر ہم نظر ڈالیں تو اس سے ایک بات نکل کر آتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے بنیادی اردو قواعد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہاں اس ویڈیو میں کچھ معروضی سوالات دیے ہیں تاکہ آپ اسے حل کریں اور آپ اردو قواعد کے بارے میں اپنی جانکاری کو اور بھی ازبر اور مضبوط کریں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن باکس میں میرے پلے لسٹ کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کر شروع سے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، معروضی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 4، 3 یا 5؟ بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 4، 3 یا 5؟ جواب دیجئے۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، آپ پڑھے ہوں گے: مصدر، مشتق اور جامد۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ رضیہ، یہ لفظ رضیہ کیا ہے؟ مصدر، مشتق، جامد یا مرکب؟ تو رضیہ کیا ہے؟ جامد ہے۔ مصدر تو نہیں ہو سکتا، مصدر نہیں ہوگا کیونکہ رضیہ میں نا نہیں لگا ہوا ہے۔ مشتق بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ رضیہ کسی سے بنا نہیں ہے۔ جامد ہے اس لیے کہ رضیہ نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے گا، اور مرکب بھی نہیں ہے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ جو کسی سے نہ نکلا ہو اور نہ ہی اس سے دوسرے کلمے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ دھیان دیجیے گا کوشچن پر۔ جو کسی سے نہ نکلا ہو اور نہ ہی اس سے دوسرے کلمے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشتق، جامد، مصدر یا مرکب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جامد۔ جو کسی سے نہ نکلا ہو اور نہ ہی اس سے دوسرے کلمے نکلے۔ اگلا کوشچن ہے لکھنا، یہ کیا ہے؟ مصدر مرکب، مصدر متعدی، مصدر جعلی یا اسم نکرہ؟ دھیان دیجیے گا، لکھنا کیا ہے؟
मस्दर मुरक्कब है, मस्दर मुतअद्दी है, या मस्दर जाली है, या इसमें नकरा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लिखना ये क्या है, मस्दर मुतअद्दी है। मस्दर मुरक्कब इसलिए नहीं है कि मुरक्कब माना होता है दो लफ्ज़ या उससे ज़्यादा से बना हो, लिखना तो एक लफ्ज़ है। इसी तरह मस्दर जाली भी नहीं हो सकता, इसलिए कि मस्दर जाली उसे कहते हैं जो दूसरे ज़बान से लफ्ज़ लिए गए हों, लेकिन लिखना तो ख़ुद उर्दू लफ्ज़ का ज़बान है। इसी तरह इसमें नकरा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है लिखना। इसी तरह इसमें नकरा भी नहीं है, इसलिए कि इसमें नकरा इसमें जामिद की किस्म है और लिखना क्या है, ये मस्दर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ख़रीदना क्या है? लफ्ज़ ख़रीदना ये क्या है, मस्दर, जामिद, मुश्तक़ या मुरक्कब? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ख़रीदना क्या है, ये मस्दर है। इसलिए कि यहाँ ना लगा हुआ है, आप पढ़ चुके हैं मस्दर की अलामत कि जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा हो वो मस्दर होता है। जामिद भी नहीं हो सकता और न ही ये मुश्तक़ है, इसलिए मुश्तक़ उसे कहते हैं जो मस्दर से निकला हो, ये तो ख़ुद ही मस्दर है। और मुरक्कब भी नहीं है, इसलिए मुरक्कब उसे कहते हैं जो दो लफ्ज़ या दो लफ्ज़ से ज़्यादा से बना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसना ये क्या है? हंसना ये क्या है, मस्दर मुरक्कब, मस्दर मुतअद्दी, मस्दर लाजिम या मस्दर जाली? जवाब दीजिएगा आप। तो इसका सही जवाब है हंसना क्या है, मस्दर लाजिम है। इसका सही जवाब है जिम। मस्दर मुरक्कब इसलिए नहीं कि मुरक्कब ही से तो ये छट गया कि मुरक्कब दो लफ्ज़ से बनता है, तो हंसना एक लफ्ज़ है। मस्दर मुतअद्दी भी नहीं है, मुतअद्दी माना होता है कि वो मस्दर जो फ़ाइल और मफ़ऊल को भी चाहे। जैसे हंसना से अगर हम फ़ेल बनाएं कि ज़ैद हंसता है, तो यहाँ ज़ैद फ़ाइल हुआ और हंसता है ये फ़ेल हुआ, मफ़ऊल की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ, इसलिए ये क्या होगा, मस्दर लाजिम होगा। लाजिम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ फ़ाइल हो। बात समझ में आ गई होगी। मस्दर जाली भी नहीं है, इसलिए हंसना तो असली है, उर्दू का लफ्ज़ है ना, इसलिए ये मस्दर जाली नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मस्दर जाली की पहचान कीजिए। लिखना, पढ़ना, दौड़ना, पूजना, इन चारों में से मस्दर जाली कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कि मस्दर जाली क्या है, ये पूजना, ये मस्दर जाली है। लिखना तो मस्दर असली है, पढ़ना मस्दर असली है, दौड़ना मस्दर असली है, इसलिए कि ये खालिस उर्दू लफ्ज़ है। लेकिन पूजना ये पूज से बना है जो हिंदी लफ्ज़ है, इसलिए मस्दर जाली ये पूजना होगा। अगला सवाल है, मस्दर मुफ़रद की पहचान कीजिए। अता करना, छुटकारा पाना, लिखना और हल करना, इन चारों मस्दर में से मस्दर मुफ़रद कौन है? तो इसका सही जवाब होगा लिखना, ये मस्दर मुफ़रद है। इसलिए अता करना, देखिए अता करना दो लफ्ज़ है, छुटकारा पाना दो लफ्ज़ है, हल करना यहाँ भी दो लफ्ज़ है, और लिखना ये मुफ़रद है यानी अकेला है। तो जो मस्दर अकेला उसे मस्दर मुफ़रद कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। मदद करना क्या है? मस्दर मुफ़रद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम, फ़ेल हाल। एक बार और दोहरा देते हैं, मदद करना ये क्या है? मस्दर मुफ़रद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम, फ़ेल हाल। तो इसका सही जवाब है कि मदद करना ये मस्दर मुरक्कब है। मस्दर मुफ़रद तो नहीं हो सकता, इसलिए कि दो लफ्ज़ इसमें, मदद और करना। लाजिम भी नहीं है, इसलिए कि मदद करना ये फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों को चाहता है। जैसे हम जुमला बोलते हैं ज़ैद ने बकर की मदद की, तो ज़ैद फ़ाइल और बकर मफ़ऊल हो गया, तो जिसमें जो ही मफ़ऊल आया तो वो मुतअद्दी हो जाएगा, लाजिम नहीं रहेगा। लाजिम सिर्फ़ फ़ाइल को चाहता है और फ़ेल हाल भी नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो ख़ुद किसी कलमे से ना निकला हो लेकिन दूसरे कलमे उससे निकले उसे क्या कहते हैं? जो ख़ुद किसी कलमे से ना निकला हो लेकिन दूसरे कलमे उससे निकले उसे क्या कहते हैं? मस्दर, मुश्तक़, जामिद या मुफ़रद? तो इसका सही जवाब है मस्दर। जो ख़ुद किसी कलमे से ना निकला हो लेकिन दूसरे कलमे उससे निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मस्दर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
मस्दर की कितनी किस्में हैं? मस्दर की कितनी किस्में हैं? 5, 4, 3, 6। तो इसका सही जवाब है मस्दर की 6 किस्में हैं। मस्दर असली, मस्दर जाली, मस्दर लाजिम, मस्दर मुतअद्दी और मस्दर मुफरद और मस्दर मुरक्कब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मस्दर असली की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए? मस्दर असली की पहचान कीजिए। आज़माना, बख्शना, लिखना, अता करना। इन चारों में से मस्दर असली कौन है? तो इसका सही जवाब है मस्दर असली है लिखना। इसलिए कि आज़माना फ़ारसी लफ्ज़ है, बख्शना फ़ारसी लफ्ज़ है और अता ये अरबी लफ्ज़ है। इसलिए लिखना ये ख़ालिस उर्दू लफ्ज़ है, इसलिए लिखना क्या होगा? ये मस्दर असली होगा। इसमें मफ़ऊल की शनाख्त कीजिए। इसमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। कातिल, मज़दूर, साइल, मखलूक। इन चारों में से इसमें मफ़ऊल कौन है? तो इसका सही जवाब है मखलूक। मखलूक क्या है? ये इसमें मफ़ऊल है, इसलिए कि कातिल ये फ़ाइल के वज़न पर है। मज़दूर मज़दूरी करने वाला, तो जिसमें करने वाला लफ्ज़ लग जाए तो इसमें फ़ाइल होगा। साइल मांगने वाला, तो ये क्या हुआ? इसमें फ़ाइल हुआ। लेकिन मखलूक ये क्या है? मफ़ऊल के वज़न पर है, इसलिए ये क्या है? इसमें मफ़ऊल है। अगला सवाल है भिखारी क्या है? भिखारी क्या है? इसमें मफ़ऊल, इसमें मुआवज़ा, इसमें फ़ाइल, हासिल मस्दर क्या है? तो इसका सही जवाब है भिखारी क्या है? इसमें फ़ाइल है, इसलिए कि इसमें मफ़ऊल तो हो नहीं सकता। भिखारी मतलब क्या होता है? भीख मांगने वाला। लफ्ज़ वाला लग गया तो समझ लीजिए जिस लफ्ज़ में वाला लगा, या तो उसमें ख़ुद लफ्ज़ में लगा हो या उसके माना में, तो वह इसमें फ़ाइल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है जीम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल जला, दिल जला क्या है? फ़ेल माज़ी, इसमें मफ़ऊल समाई, इसमें मफ़ऊल क़यासी, इसमें फ़ाइल। ध्यान दीजिएगा, दिल जला लफ्ज़ ये क्या है? फ़ेल माज़ी है, इसमें मफ़ऊल समाई है, इसमें मफ़ऊल क़यासी है, या इसमें फ़ाइल है? तो इसका सही जवाब है ये इसमें मफ़ऊल समाई है। फ़ेल माज़ी तो हो नहीं सकता, इसलिए कि इसमें ज़माना नहीं है। इसमें मफ़ऊल क़यासी भी नहीं, इसलिए कि क़यासी उसे बोलते हैं जो जिसके बनाने का कोई कायदा हो। तो दिल जला बनाने का कोई कायदा नहीं है। इसमें फ़ाइल भी नहीं है, इसलिए कि इसमें फ़ाइल वो होता है जिसके लफ्ज़ में या उसके माने में वाला लफ्ज़ लगा हो। तो दिल जला में वाला तो लगा नहीं हुआ। दिल जला का मतलब क्या हुआ? जिसका दिल जला हो। तो ये क्या होगा? इसमें मफ़ऊल होगा, और ये समाई है, इसलिए कि इसके बनाने का कोई कायदा नहीं है। बस दिल जला को लफ्ज़ को उर्दू दाने इसको इसमें मफ़ऊल मान लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें फ़ाइल की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 3 या 2? तो इसका सीधा सा जवाब है इसमें फ़ाइल की 2 किस्में हैं। कौन कौन? इसमें फ़ाइल क़यासी और इसमें फ़ाइल समाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें मफ़ऊल समाई की पहचान कीजिए। इसमें मफ़ऊल समाई, ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसमें मफ़ऊल जिसके बनाने का कोई कायदा ना हो। बढ़ई, लिखी हुई, दीदा, भगोड़ा। जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब है भगोड़ा। इसलिए कि बढ़ई इसमें फ़ाइल है, लिखी हुई इसमें फ़ाइल क़यासी है, और दीदा ये भी इसमें फ़ाइल क़यासी। लेकिन भगोड़ा किसको बोलते हैं? जो भाग गया हो, भागा हुआ, उसी को ना भगोड़ा बोलते हैं। इसके बनाने का कोई कायदा भी नहीं है, इसलिए इसमें मफ़ऊल समाई हुआ। अगला सवाल है इसमें फ़ाइल क़यासी की पहचान कीजिए। इसमें फ़ाइल क़यासी, ऐसा इसमें फ़ाइल जिसके बनाने का कोई कायदा हो। तो ध्यान दीजिएगा, खाने वाला, भिखारी, मज़दूर, बढ़ई। इसमें फ़ाइल क़यासी कौन है? तो इसका सही जवाब है अलीफ़, खाने वाला। ये इसमें फ़ाइल क़यासी है। भिखारी भी इसमें फ़ाइल है, मज़दूर भी इसमें फ़ाइल है, बढ़ई भी इसमें फ़ाइल है, लेकिन ये सब क्या है? इसमें फ़ाइल समाई है। इसलिए देखिए
तीनों अलग अलग है, भिखारी, मज़दूर, बढ़ई। इसके बनाने का कोई कायदा नहीं, लेकिन खाने वाला ऐसा लफ्ज़ है कि इसके बनाने का कायदा है। पीने वाला, सोने वाला, जागने वाला, सब में वाला लगा हुआ, सब एक ही तरह है, इसलिए ये इसमें फ़ाइल क़यासी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाशिंदा ये क्या है? बाशिंदा क्या है? इसमें फ़ाइल क़यासी, इसमें मारफा, इसमें फ़ाइल समाई या फ़ाइल? ध्यान दीजिएगा, बाशिंदा क्या है? इसमें फ़ाइल क़यासी है, इसमें मारफा है, या इसमें फ़ाइल समाई है या फ़ाइल है? तो इसका सही जवाब है इसमें फ़ाइल क़यासी है। बाशिंदा फ़ारसी लफ्ज़ है जिसके माना होता है रहने वाला, लफ्ज़ वाला लग गया, और इसका बनाने का एक कायदा है, इसलिए ये क्या हो गया, इसमें फ़ाइल क़यासी हुआ। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने वालियाँ कौन सा सिगा है? पढ़ने वालियाँ कौन सा सिगा है? वाहिद मुअन्नस, जमा मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर, जमा मुअन्नस, कौन सा सिगा है ये? तो ये पढ़ने वालियाँ क्या है? जमा मुअन्नस है। देखिए वालियाँ, वालियाँ जैसे लगा ये जमा हो गया, और इसमें तज़कीर यानी स्त्रीलिंग पाया जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, मुअन्नस हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फ़ाइल समाई की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए? इसमें फ़ाइल समाई की। दौड़ने वाली, पढ़ने वाले, खाने वाला, मज़दूर। तो इसका सही जवाब है मज़दूर। देखिए चारों ये क्या हैं, इसमें फ़ाइल हैं, लेकिन ये इसमें से 3 जो हैं इसमें फ़ाइल क़यासी है, इसलिए इसके बनाने का कायदा, किसी में वाला वाली लगा हुआ है, लेकिन मज़दूर इसके माना में वाला लगा हुआ है, यानी मज़दूरी करने वाला, इसलिए क्या हुआ, इसमें फ़ाइल समाई हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। पढ़ने वाला, पुजारी, लिखा हुआ, रखवाला, इसमें मफ़ऊल क्या है? तो इसमें मफ़ऊल इसमें क्या है, लिखा हुआ, इसलिए पढ़ने वाला तो इसमें फ़ाइल है, पुजारी भी इसमें फ़ाइल है, पूजा करने वाला, रखवाला भी इसमें फ़ाइल है, और लिखा हुआ ये क्या है, इसमें मफ़ऊल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइल क्या है? लफ्ज़ साइल ये क्या है? इसमें मफ़ऊल, इसमें फ़ाइल समाई, इसमें फ़ाइल क़यासी या हासिल मस्दर? तो इसका सही जवाब है ये इसमें फ़ाइल क़यासी है, इसलिए कि साइल ये फ़ाइल के वज़न पर है, तो जो फ़ाइल के वज़न पर आए तो वो क्या होगा, इसमें फ़ाइल होगा, गोया कि इसका कायदा है, इसलिए ये इसमें फ़ाइल क़यासी हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें ज़र्फ़ की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए? इसमें ज़र्फ़ की पहचान कीजिए। बर्तन, कुतुबखाना, ज़ेवर, मज़दूर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कुतुब खाना। ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ है, इसलिए कि ये जगह को बता रहा है। बर्तन, ज़ेवर और मज़दूर ये जगह को या ज़माना को नहीं बता रहा है, इसलिए कुतुब खाना क्या हुआ, ये इसमें ज़र्फ़ हुआ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुर्दा क्या है? मुर्दा क्या है? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल समाई, इसमें मफ़ऊल क़यासी, इसमें फ़ाइल समाई। तो इसका सही जवाब है इसमें मफ़ऊल क़यासी। इस मुर्दा का माना क्या होता है, मरा हुआ, तो जिसमें लफ्ज़ हुआ लग गया वो क्या हो गया, इसमें मफ़ऊल हुआ। और क़यासी यूँ हुआ कि ये इसके बनाने का कायदा है कि मुर्दन ये मज़दर है, उसके आखिर में है लगा दिए हैं, तो मुर्दा हो गया, इसलिए ये इसमें मफ़ऊल क़यासी है। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो लफ्ज़ किसी जगह के नाम को बताए उसे क्या कहते हैं? जो लफ्ज़ किसी जगह के नाम को बताए उसे क्या कहते हैं? इसमें आला, हासिल मज़दर, ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान? तो इसका सही जवाब है उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं। इस मकान जगह ये हम नाम है, तो जो लफ्ज़ किसी जगह के नाम को बताए उसे क्या कहेंगे, ज़र्फ़ मकान कहेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ा हुआ ये क्या है? इसमें फ़ाइल क़यासी, इसमें मफ़ऊल समाई, इसमें मफ़ऊल क़यासी, इसमें फ़ाइल समाई। पढ़ा हुआ, लफ्ज़ पढ़ा हुआ ये क्या है?
تو اس کا صحیح جواب ہے یہ اسم مفعول قیاسی ہے، اس میں فاعل نہیں، اس لیے کہ اس میں تو والا ہوگا، اس میں مفعول سماعی بھی نہیں، سماعی وہ ہوتا ہے جس کے بنانے کا قاعدہ نہ ہو، اس کا تو بنانے کا قاعدہ ہے، تو یہ کیا ہوگا، اس میں مفعول قیاسی ہوگا، اس لیے کہ پڑھا ہوا لگا ہوا ہے تو یہ اس میں مفعول ہو گیا، اور بنانے کا اس کا قاعدہ ہے، اس لیے یہ قیاسی ہوا۔ اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ پڑھے ہوئے، لفظ پڑھے ہوئے کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر، واحد مذکر، واحد مؤنث، جمع مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ جمع مذکر ہے۔ پڑھے تو یہ جمع ہو گیا، ہوئے یہ کیا ہوا، مذکر ہو گیا۔ چلیے دوستو اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ کام کو بتائے، جو لفظ نام کو بتائے، جو زمانہ کے نام کو ظاہر کرے، جو جگہ کے نام کو بتائے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جو زمانہ کے نام کو ظاہر کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں، یہ لفظ ہی سے ظاہر ہے۔ اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ پینٹ کی سلائی کیا لوگے؟ اس جملے میں سلائی کیا ہے؟ یہ لفظ جو سلائی استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں معاوضہ، اس میں حالیہ، حاصل مصدر یا اس میں مرکب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ کیا ہے، اس میں معاوضہ ہے۔ یہاں سلائی سے کیا مراد ہے؟ سلائی سے مطلب سلنا مراد نہیں، مطلب سلائی کے معاوضے میں، بدلے میں کیا لوگے، کتنے پیسے لوگے؟ تو یہاں سلائی سے مراد کیا ہے، سلائی کی اجرت، اس کا بدلہ کیا لوگے، اس لیے یہاں لفظ سلائی کیا ہو گیا، اس میں معاوضہ ہو گیا۔ اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ زاہد سوار ہو کر آیا، جملے میں سوار ہو کر کیا ہے؟ اس جملے میں جو یہ لفظ ہے سوار ہو کر، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، یا حال ہے، یا ذوالحال ہے؟ تو دوستو یہ سوار ہو کر کیا ہے، یہ حال ہے۔ حال ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے اسے حال کہتے ہیں، اور جس کی حالت بیان کرے اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ یہاں ذوالجلال ہو گیا ہے لیکن یہ لفظ ہے ذوالحال۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم۔ اگلا کوشچن ہے ہتھوڑا کیا ہے؟ لفظ ہتھوڑا یہ کیا ہے؟ ظرف زمان، ظرف مکان، اسم فاعل یا اسم آلہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ اسم آلہ ہے۔ اسم آلہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی کام کرنے کا ذریعہ بنے اسے اسم آلہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ہتھوڑا یہ ٹھوکنے کا آلہ ہے نا، کام کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس لیے یہ اسم آلہ ہوگا۔ چلیے دوستو اگلے کوشچن کی طرف بڑھ۔ میں کدا یہ کیا ہے؟ لفظ میں کدا یہ کیا ہے؟ اسم آلہ، حاصل مصدر، ظرف مکان یا اسم حالیہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میں کدا یہ ہے ظرف مکان۔ دوستو میں کدا کسے کہتے ہیں؟ میں منع ہوتا ہے شراب، کدا منع جگہ، میں کدا شراب خانہ، تو یہ کیا ہوا، شراب خانہ کوئی تو جگہ ہوگی، تو یہ جو جگہ کو بتایا اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف مکان کہتے ہیں، اس لیے میں کدا یہ ظرف مکان ہوا۔ اگلا کوشچن ہے بکر بیٹھ کر پانی پی رہا ہے، اس جملے میں ذوالحال کی پہچان کیجیے۔ دھیان دیجیے گا، بکر بیٹھ کر پانی پی رہا ہے، تو اس جملے میں ذوالحال کون سا لفظ ہے؟ پانی پی رہا ہے، بیٹھ کر، بکر، تو ذوالحال کی پہچان کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ذوالحال اس میں بکر ہے، اور حال کیا ہے؟ بیٹھ کر۔ حالت بیان کر رہے ہیں نا، بکر پانی کیسے پی رہا ہے، کس حالت میں پی رہا ہے؟ تو بیٹھ کر، تو بیٹھ کر یہ ہو گیا ذوالحال، اور بکر کیا ہو گیا؟ یہ ذوالحال ہو گیا۔ چلیے دوستو اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے۔ آزمائش کیا ہے؟ یہ لفظ آزمائش یہ کیا ہے؟ اس میں معاوضہ، حاصل مصدر، اسم فاعل یا اسم حالیہ؟ تو دوستو یہ کیا ہے؟
حاصل مصدر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں جو مصدر سے حاصل ہو، تو آزمانا سے بنا ہے آزمائش، تو یہ آزمائش کیا ہو گیا؟ یہ حاصل مصدر ہوا، اس لیے کہ اس میں مصدری معنی موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے معروضی سوالات۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس باکس میں ہمیں اپنے انوبھو کو بتانے کی کوشش کیجئے۔ اور دوستو گزارش یہ کریں گے کہ آپ میرے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں تاکہ معاون اردو مترجم کی تیاری کرنے میں آپ کو سہولیت ہو، اور ہم اسی طرح ویڈیو کنٹینٹ کو ڈالتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ لگاتار اسے دیکھتے رہیں۔ آپ اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔